If you're somebody who sees red flags and goes, maybe I can fix him, this video is for you. Because you are not his therapist, not his mom, and not an emotional ambulance. So I'm going to talk about 5 red flags that should make you disappear, delete and block him immediately. Okay girlies, so pehla लाल झंडा is if he abuses you or talks down on you. तो आई नो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लाइक वी ऑल नो कि भी टाइप का अब्यूज़ इज़ नॉट नॉर्मल एंड किसी को भी वो सह के नहीं लेना चाहिए. बट द रीज़न आई एम टेलिंग दिस इज़ बिकॉज आई हैव विटनेस्ड फ्यू सिनेरियोज जहाँ पीपल हैव बीन लाइक he abuses me verbally, physically, but I still want to be with him because I love him. Love yourself enough to think. इतनी self respect तो होनी चाहिए कि भाई this is not okay. But कुछ लोग हैं जिनको पसंद है लाल झंडे एंड उनको लगता है कि हम इस इंसान से इतना प्यार करते हैं कि even if he abuses me और कितना भी वर्स्ट सिनेरियो हो जाए, आई एम स्टिल गोइंग टू चूज हिम. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ इज़ नॉट ओके. अगर तुम उसके बावजूद उसके साथ रह रहे हो, फिर तुमसे बड़ा पागल इंसान कोई नहीं है. लाइक यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ एट ऑल. और रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके बाद जो होगा, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगे क्योंकि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, तुम्हारे सामने हो रही है चीज़ें, बट यू आर स्टिल एक्सेप्टिंग इट. यू आर स्टिल शोइंग दैट पर्सन के दिस इज़ ओके. इफ़ यू ट्रीट मी लाइक दिस, आई एम ओके विद इट. मेरे तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मेरी कोई बाउंड्री नहीं है, मुझे कैसे भी ट्रीट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे मारो पीटो, आई एम ओके विद इट. You have to make that person understand. I mean, you don't have to make him understand कि वो तुमको नहीं मार रहे. What I mean is कि हम दूसरे इंसान को सिखाते हैं how we like being treated or loved. ये बहुत बेसिक है कि ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत bare minimum है, everybody has to do it, and you also need to let the other person know कि how you like being treated and जो चीज़ें तुम accept करोगे, नहीं accept करोगे. एंड इफ़ यू स्टिल, अगर फिर भी लोगों को आके तुम्हें बताना पड़ रहा है कि दिस इज़ नॉट ओके, आई मीन यू जस्ट नॉट लव योर सेल्फ इनफ टू नॉट अंडरस्टैंड दैट फिजिकल अब्यूज़ और वर्बल अब्यूज़ इज़ नॉट ओके एट ऑल. सो या, इफ़ दैट पर्सन टॉक्स डाउन ऑन यू ऑल द टाइम, तुम्हें छोटा दिखाना चाह रहा है, मे बी अगर तुम उससे कम पैसे कमा रहे हो या फिर just anything, if your partner makes you feel that way, that is not okay at all, and that is a very big red flag and you should leave immediately. Second red flag is if he trashes his ex like it's a sport. So basically, if he tells you on a first date that my ex was crazy, he was very toxic, I was always the one who was right, you are going to be the next person on that crazy list. So protect yourself from that. If a guy keeps abusing his ex verbally in front of you, कि उसको लगेगा ओ तुम्हें कितना अच्छा लगेगा कि तुम अपनी ex की बुराई कर रहे हो उसके सामने, बहुत cool लगेगा, and he will gain your trust. We are not accepting that behavior. We are not okay with letting a man trash talk his ex in front of us, क्योंकि that is how you know how he is as a person. क्योंकि तुम खुद सोचो, आज वो अपनी एक्स को वर्बली अब्यूज़ कर रहा है तुम्हारे सामने, कल को जब तुम उसकी एक्स बन जाओगी वो तुम्हारे बारे में वैसी बात करेगा, एंड दैट इज़ नॉट ओके. So that is a very big red flag and you should always avoid that. Third red flag is that he has no humility, only ego. So when the person thinks, hey, I'm the one who is always right, and he never accepts his mistake, that is a very big red flag and you should walk away as fast as you can, because that person is not going to accept anything he does wrong तुम्हारे साथ में. Like he's just going to deny everything. He's going to be like कि तुम्हें manipulate करता रहेगा. That is peak narcissist behavior and that is not going to be healthy for you. आगे जाके जब too late हो जाए उसको छोड़ने के लिए, उसका वेट मत करो. Leave as soon as you can. I mean, we all deserve somebody जो communicate करे healthy way में, जो अपनी गलतियाँ accept करे. Always look for character. Don't look for looks. Don't go for looks. Don't go for money. Don't go for fame. मतलब वो इंसान के पास कितना फेम है, वो सब चीज़ें it's not important. Just think about it. Like that is how I used to think. जब जो हमारे लिए looks, पैसा, fame, it's all temporary. ठीक है, like this is just a part
बट वॉट इज़ गोइंग टू मैटर इज दैट हाउ ही ट्रीट्स यू, लाइक उसका कैरेक्टर कैसा है. इज़ ही हम्बल, इज़ ही नॉट हम्बल. वी ऑल डिजर्व समबडी जो हमें स्पेशल फील कराए, जो हमारे से अच्छे से बात कर सके. ये सब बेयर मिनिमम चीज़ है कि हमें रिस्पेक्ट से हम क्या बोल रहे हो, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमें अच्छे से ट्रीट करे, हमारे लिए हमें अफेक्शन शो करे. एंड दीज आर ऑल बेयर मिनिमम. ऑलवेज गो फॉर कैरेक्टर. जिसमें ढेर सारा ईगो है वो इंसान को बहुत एंगर इश्यूज होंगे. एंड आई हैव डेल्ट विद इट. So trust me when I say this. Always go for somebody who is calm and kind and very humble. So the fourth red flag is how he treats you when he is angry or when you say no. This is very important. Because what happens is guys don't like when women say no to some things. Like तुम्हें कुछ और करना है but उसको कुछ और करना है, तुम मना कर रहे हो उसको जो करना है. He's going to be really mad about it. No, not everybody has that emotional intelligence, and dating an emotionally intelligent person is very important. How he behaves with you when he is angry, that is also very important. Watch how he treats you when he is mad at you or angry. Like if he keeps ghosting you or if he keeps blaming you, makes you feel bad about yourself when he is angry, yeah, he just goes on arguing and fighting with you. That is not a good sign. Also, if he doesn't talk to you, silent treatment दे रहा है, that is also a red flag. Always look for somebody who knows how to deal with anger. ठीक है, it's okay to take your time and space, and then जब तुम्हारा mind calm down हो जाए तब तुम अपने partner से बात करो. But if he doesn't know how to deal with his anger, तुम उसको बैठ के fix करती रह जाओगी. And trust me when I say this, it's not good. ठीक है, क्योंकि तुम उसकी मॉम नहीं हो, यू आर नॉट हिज थेरेपिस्ट, कि वो तुम्हारा पार्ट नहीं है कि तुम उसको बैठ के सिखाओगे कैसे एंगर से डील करना है. लाइक दिस इज़ बहुत ही बेयर मिनिमम चीज़ है, हर किसी को आनी चाहिए. फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग इज ही मेक्स नो टाइम फॉर यू. ठीक है, जब भी तुम उससे टाइम मांग रहे हो, ही ऑलवेज कम्स अप विद एक्सक्यूजेज. ही कीप्स मेकिंग ऑल काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज and he never makes time for you. See, making time is a choice and I cannot stress enough on this, but if he wanted to, he would. ये बहुत true है. Like कोई भी बंदा, if he likes you enough or if he loves you, he will make time for you anyhow. Like he cannot just be okay without you. Like he will not be okay without you in the sense कि 24 घंटे हो गए तुमसे बात किए बगैर and he is like completely fine. नहीं, उसको अफेक्ट होगा. ठीक है, your absence should affect him, and you crying harder for his time won't make him emotionally intelligent. And अगर उसको लग रहा है ना, if you feel like you're always bothering him, then that's right, you are bothering him and you should leave. ठीक, रोने धोने से कुछ नहीं होगा. ठीक है, if he wants to make time for you, वो कैसे भी घर के टाइम निकालेगा. It is as simple as that. So उसके पीछे भागने रोने से कुछ नहीं होगा. It just तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी इस चीज़ से. So yes, ये सारे रेड फ्लैग्स हमेशा ध्यान में रखना. And always value yourself, always value your time, energy and effort, and love yourself first. I know you want to believe that he's just misunderstood and he will heal and he will get better, but trust me, he won't. That is not your job. ठीक है, तुम बॉब द बिल्डर नहीं हो तो बॉब द बिल्डर मत बनो. ये इन सब में से कोई भी एक रेड फ्लैग तुम देख लेते हो उस इंसान में, लीव इमीडिएटली. मेकअप बैग, और इसमें ढेर सारा मेकअप है. ठीक है, एंड ये मेकअप बैग मैंने इसीलिए बताया है आप लोगों को क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप ये सारे रेड फ्लैग इग्नोर कर रहे हो तो मैं आपके घर आके आपको ये मेकअप बैग में से मेकअप यूज़ करके क्लाउन मेकअप करूँगी और पूरे शहर में घुमाऊँगी उस क्लाउन मेकअप से, क्योंकि आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा कि आप बेटर डिज़र्व करते हो और आपको स्टिल रेड फ्लैगों के साथ रहना है और आपको ग्रीन फ्लैग बनना चाहिए ही नहीं है, आपको बेहतर ही नहीं होना है. वीडियो में जो भी मैं कह रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट कि सामने वाला ही रेड फ्लैग होगा, ये सारे रेड फ्लैग हम में भी हो सकते हैं. तो अगर आपको ये पॉइंट्स देख के लग रहा है कि ओह मेरे में भी है ये, तो ये वाला रेड फ्लैग तो मैं ही हूँ, तो कंसिडर गेटिंग बेटर. अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी मदद हुई हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा है मैं हर वीक 1-2 वीडियोस बनाऊंगी एंड यहाँ पे पोस्ट करूँगी जो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है.